अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 10 मई को पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुसलसल दूसरी बार एक भरपूर जवाब दिए जाने और अमरीका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के बाद अब जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली पर बहुत बात हो रही है और पाकिस्तान की जानिब से अस्करी महाज पर चीनी टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल के तनाजुर में अब खित्ते में चीन का स्ट्रेटेजिक किरदार भी इस वक्त जेर बहस बना हुआ है। इसके साथ साथ अब ये सवाल भी उठ रहा है कि अमरीकी मुदाखलत के बाद पाकिस्तान के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी के इशूज़ पर भारत कैसे एंगेज करेगा, जबकि आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये तजवीज़ भी सामने आई है कि पाक भारत वज़राए खारजा की सतह पर बातचीत के लिए एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। आखिर 10 मई को पाक भारत कशीदगी में अमरीका की एंट्री कैसे हुई और अब जनूबी एशिया में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और साउथ एशियन उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन। Assalamu alaikum, Michael. Good morning to you. Thank you. Good to be here with you. Thank you, Michael. First of all, how do you look at this Pak-India recent tensions, and if you compare it to the tensions in the past, how do you think these were the most intense, and what is your assessment? Which side appeared weaker, and in what sense, and which side had the edge over the other, in what sense? Well, this was just a very different type of crisis than we've seen recently in terms of the recent past crises, mainly because there was, the level of force used was just much more. The scale was higher, the intensity was higher, and you just had more cases of hostilities. I think what we've been used to looking at 2019, looking at 2016, is India doing something and then Pakistan either not responding or responding once, and then things essentially wrap up. But what made this crisis so different, and in my view so much more dangerous, is that this was not just a case of a strike, a counter-strike, and a call for de-escalation, but you actually had several different tit-for-tat cycles, and right before the talks started leading to the ceasefire, you had both countries sending drones and missiles into each other's territory and hitting military sites, some of them quite sensitive. This is quite significant, and what I've been saying, and I speak as an outside observer of the crisis and of India-Pakistan relations. This was the closest that India and Pakistan have been to going to war since the Kargil conflict in 1999. Yeah. I would actually argue that the nuclear deterrent was tested more than it has ever been, at least since 1999, but even on the whole, since Pakistan and India became formal nuclear states in 1998. Just because of the fact that you had military force being used in different parts of each country, the level of intensity was very high, and so many sensitive sites being hit. So you're basically confirming that the nuclear deterrence has also been tested this time after 1995. Yeah, well, of course, nuclear deterrence is always going to be tested whenever there's any type of hostilities, because both countries have nuclear weapons. But I would argue that in this particular case, it was put to the test, especially markedly, just because we were seeing high levels of escalation in terms of conventional force being used. Again, we have not seen cases of each country firing missiles and drones into the other country, deep into the other country, and targeting pretty sensitive sites. I think at the end of the day, each country respects the nuclear deterrence. And Michael, was this the reason that US had to jump into this conflict, and they had to, like Vice President Vance went to speak to Modi and directly, and on May 10th, just hours after Vance had declared that it is not US's business to intervene in this conflict? I think all along, despite the messaging from the U.S. of not wanting to get involved, I think all along there was a desire on the part of the U.S. to keep a focus on what was happening. There were consistent calls for de-escalation. And in fact, Marco Rubio, the Secretary of State, he was in contact with his counterparts in India and Pakistan several times in the days leading up to the ceasefire. But to your question, I think that why the U.S. decided to get involved to help broker the ceasefire. Two reasons. The first one is just escalation dynamics. The fact that, as we've been discussing, you had these repeated tit-for-tat cycles of hits on both sides, and I think that was really the U.S. quite concerned. And two, the other reason, and I think this is the core reason, is indeed concerns about nuclear escalation risks. And there's already been a fair amount of reportage on this in the U.S.,
that when you started having several particular sites that were targeted, Right. particularly the Nahan base in Rawalpindi, and then also the public announcement by Islamabad that it was going to convene its National Command Authority. I think this is when the U.S. really started to get concerned and started to really worry about nuclear escalation risks. And indeed, that's Right. what And prompted. was India desperate for a ceasefire, in your opinion? I mean, I'm not sure. Okay. It seemed to me that based on the messaging coming from each capital, that both capitals would have been perfectly comfortable to continue going for a few more rounds. But I would also argue, I mean, several things. One, neither country wanted a war. Neither country wanted an all-out war. Neither country could afford an all-out war. And I think that you could argue that at that point, right when the talks for the ceasefire started to begin, each side could have claimed victory. They had each dealt damage to the other's military. So, I think that they were perhaps ready for the idea of a ceasefire, even though it appeared that they would have been happy to continue going for another round or two. But the fact that the ceasefire was successful, the fact that the U.S. pitch for the ceasefire actually worked, that suggested there was receptivity from the Indian side and also from the Pakistani side. Right. And does Pakistan now hold a deterrence advantage over India, especially after the way Pakistan had responded and retaliated? Well, I mean, Pakistan responded to each of the Indian strikes quite with a lot of muscle and very quickly as well. And I do think that there may be some in India that don't think Pakistan has the capacity to respond to these Indian strikes. So absolutely, and indeed, I mean, So it Pakistan is. surprised India and a lot of other people in the world as well. I think, yeah, well, I mean, not in terms of observers and analysts that follow these dynamics, but I Right. think that particularly among the public in India didn't think that Pakistan would have the capacity to respond. And let's be very clear, India has never denied that several of its jets were shot down by Pakistan. So, I think it's true that Pakistan did shoot down several Indian jets. That is a major development, I think. It's really a milestone development in India-Pakistan relations, and I think it says a lot. I mean, it is an embarrassment for the Indian military to have several of its fighter jets shot down by Pakistan, but I think that also will psychologically have an impact and make very clear that, Pakistan does have the damage to hit back hard against India's military in ways that can be very impactful. Right. And was the Chinese factor a surprise? The way J-10Cs were used to counter French Rafales, or the Chinese technology was used to launch cyber attacks in India? No, I don't think this was surprising. I mean, it's well known that China has this very deep alliance with Pakistan, and that China is a key supplier of weaponry to Pakistan. And I think that, I know that the U.S. imposes significant limits on how Pakistan can use U.S.-made F-16. So it's only natural Pakistan would want to use those that, it's authorized to use Chinese-made F-16s for contingencies such as the ones that played out in this crisis with India. Right. And how would Modi now react? Like, will Modi crumble under the fallout of the military damage Pakistan has inflicted upon India, or will he again hit back once he recovers from this setback? How do you look at this post-ceasefire scenario between the two countries? Well, I mean, it's a fragile ceasefire. I mean, of course, there were several reported violations soon after it was put in place. There were no violations over the last day or so, which is important. But it's the bottom line. I mean, the tensions, or should I say, the root drivers of the tensions in this relationship have not gone away, quite frankly. And the fact that you had such significant levels of force being used against the other, that suggests each country is perfectly comfortable using force, limited force, but still significant levels of force under the nuclear umbrella. And so I think it's just a matter of time before you have the next trigger event that could precipitate another crisis, much like the one that played out over the last week. Right. And how do you foresee India's intentions regarding talks with Pakistan on a neutral venue to discuss broader set of issues, as indicated by Secretary Rubio? Will India come to the table, or will it evade the talks?
It's surprising, quite frankly. I can't imagine India wanting to participate in talks with Pakistan. It's had a pretty consistent policy for many years that it has no interest in talks with Pakistan. I think that perhaps the U.S. figured that in order to get agreement from Pakistan for a ceasefire, that it would be important to emphasize the idea that there would be these talks. But again, India has taken a very rigid position for much of Modi's period in power, that there's really no interest in talks. And of course, for India, the concern is that any talks with Pakistan would come around to the issue of Kashmir, which India's position is that there's nothing to discuss. So I would be skeptical if Okay. these talks develop. If they do, I suspect they would be on issues that are fairly modest, low-hanging fruit. Though I'm not sure what those would be. The relations are so fraught. I'm not Okay. sure what to talk about. So no talks on Kashmir at least. Oh Because, yeah, yeah. definitely not. Yeah, and India has also made clear that it's not going to change its position on the various punitive measures it took, economic, diplomatic measures like suspending the Indus Waters Treaty. So that suggests that these talks, if they happen, would not talk about the idea of India trying to um, uh, basically bring back the Indus Waters Treaty after having suspended it. They've said that they're not going to change that decision. Okay, so the US mediation between Pakistan and India might not work as per your assessment, and India might not come to the tables. I mean, I guess it's separate issues. I mean, the U.S. mediation worked in the sense that it helped broker a ceasefire, which is in place right now. But the terms of the ceasefire, which entail, these, according to the U.S. side, these talks happening in a neutral site, I think that it could be tough to get to that, but my understanding is that the Indian and Pakistani sides have met or will meet. There'll be some contacts and discussions, so perhaps there'll be some discussion about the possibility for holding those talks in a neutral site. And it's important to note that there was no mention from India's government, about this idea of talks. It was only from the U.S. side, and I'm sure the Pakistani side might welcome them too. But I think India is just very uncomfortable with that idea of holding talks with Pakistan outside of those that are mandated by bilateral treaty obligations. Exchanging information Right. about prisoners. So basically, a neutral venue is something that India doesn't like. But what do you think is the reason for this reluctance? I mean, as I said before, well, India's stated position is essentially that it cannot hold talks with Pakistan until Pakistan deals with its cross-border terrorism issue. So India has this mantra of no talks with terror. I have no reason to think that India's position has changed in that regard. And then the other issue, as I said before, is the Kashmir issue. That India's views that any talks with Pakistan would ultimately have to come back to the Kashmir issue, which in India's view is not up for discussion. Right. And what do you think will happen to the Indus Water Treaty? Can US help Pakistan get it restored? I mean, I think if anyone could help, it would be the World Bank, because, of course, the World Bank co-signed Yeah. the treaty, it mediated it. But that depends on what approach the World Bank might want to take to it. But this is such an important issue. And, we could talk about the various steps India's taken to try to pressure Pakistan. But, suspending this treaty is really the step that, not now, but over the longer term, could have very serious implications for Pakistanis. Not necessarily just for the government or the military, but the common people of Pakistan, given the significant impacts it could have on livelihoods, on agriculture, on public health, and so much. So I do hope that if they are able to talk, the two sides, that there would be an opportunity to discuss the possibility of revoking that suspension. But to be very honest with you, my sense is that India, for quite some time, has been wanting to suspend the treaty, and that it might have seen this crisis with Pakistan as an opportunity, that it had an excuse to finally say, okay, let's back away from it. So I simply don't think India is going to be ready to come back to the treaty anytime soon. Right. And finally, Michael, how do you read the Chinese strategic and military dominance coming to the fore following Pakistan's response? Is it something which now both India and US will have to deal with? Like, is China having the last laugh? Well, absolutely. I mean, in terms of its, the fact that, Pakistan was using Chinese-made weaponry to shoot down,
Indian jets that, in at least several cases, were French made. Yeah. I think that's something that many military analysts are going to be studying for a very long time. But this is absolutely a victory for China, and of course for Pakistan as well. Pakistan, has been able to diversify its sources of arms suppliers, as its relationship with the U.S. has become more uncertain. So it really is quite dependent on China. And we've seen how important that is. But the fact that Pakistan may now be increasingly relying on Turkish weaponry is important as well. And I think that gives it an advantage, given that India has been able to, for quite some time, do a good job of diversifying its own support sources of arms suppliers, the Russians, but now the US, the Israelis, and the French, among others. राइट, थैंक यू सो मच। माइकल कुगलमैन नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, इन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और माइकल ने बड़ा साफ अल्फाज में ये कहा है कि इस बार तनाज़े की इंटेंसिटी जो थी वो दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा थी। न्यूक्लियर डिटरेंस वाज़े तौर पर माइकल ने यह भी कहा है कि टेस्ट हुआ है इस मरतबा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बहाली है वो भारत की तरफ से अनकरीब होती नज़र नहीं आ रही, मुश्किल है बहुत, और यूएस इसमें कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो कि इस सारे मुआहिदे पर को सिग्नेटरी है वो ज़रूर इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा सरप्राइज था जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये भी सरप्राइजिंग चीज़ थी यकीनी तौर पर, और इसको जो खित्ते के माहिर लोग हैं जो खित्ते को स्टडी करते हैं, उसके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, वो यकीनी तौर पर इसको काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन इस मरतबा तनाज़े की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और आपको बता दिया साथ ही माइकल कुगलमैन ने यह भी कि भारत टेबल पर नहीं आकर बैठेगा। अब देखते हैं कि ये तनाज़ा किस तरफ जाता है। जंग रुक गई, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हो गया, और पाक भारत सीज फायर के हवाले से अमेरिका के धमाकेदार एंट्री भी हो गई है। जबकि पाकिस्तानी हमलों की नदामत के बोझ तले दबे नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के साथ जंगबंदी को आर्जी करार देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान के हर इकदाम को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा, और पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले पर ही बात होगी। ये उन गुज़िश्ता 48 घंटों का खुलासा है कि जिनके दौरान पाकिस्तान और भारत की डीजीएमओज का आज दूसरी बार राब्ता हुआ है और जंगबंदी को मजीद जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ये अहम इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और अमरीका के दौरान एक जौहरी जंग को रुकवाया है, और अमरीका की जानिब से दोनों ममालिक को यह वार्निंग दी गई थी कि अगर अस्करी लड़ाई न रोकी गई तो अमरीका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा, और जंगबंदी की सूरत में पाकिस्तान और भारत के साथ खूब तिजारत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल इससे कबल किसी भी किस्म की जंग रुकवाने के लिए तिजारत के हथियार का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, और किसी ने भी दुनिया में ये काम नहीं किया। और अब जंगबंदी के बाद अमेरिका के भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए मज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी मज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। जंगबंदी तो हो गई नाजरीन, मगर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिनमें सबसे अहम क्या 10 मई को दिए गए भरपूर जवाब की शक्ल में पाकिस्तान ने खित्ते में एक नया डेटरेंस कायम कर दिया है। और अब क्या भारत कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के इशूज़ पर पाकिस्तान के साथ एंगेज करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा जो तीसरा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर भारत मज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो फिर सीज़ फायर से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है या होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, और दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। चौधरी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आज सामने आए हैं और जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि उनसे पहले कभी किसी ने तिजारत का अल्टीमेटम दे के दो ममालिक के दरमियान एटमी जो जंग है उसको नहीं रुकवाया, तो क्या वाकई ही उन्होंने दोनों ममालिक को ये एटमी जंग जो है वो उसकी मतलब जंगबंदी जो है वो तिजारत के ही थ्रू करवाई है, या उनका असल मकसद इसके पीछे अपने इस खित्ते में जो उनका बदमाश है उसको फेस सेविंग दी है ट्रेड की तड़ियां लगा के? जी फेस सेविंग दी है, क्योंकि इन्होंने शुरू में तो 4-5 दिन दिए इनको हिंदुस्तान को। अच्छा भाई, जो करना है कर लो, हम न्यूट्रल हैं, जो पिटाई करनी है कर लो, तुम बड़ा जोम है तुम्हें तो कर लो। लेकिन जब उन्होंने पासा पलटते देखा तो उनको अंदाजा हुआ कि ना सिर्फ ये पिट रहे हैं, और अगर ये बड़ी पट्टी चलेगी तो ये डायमेंशंस इख्तियार कर ली। इस वजह से दोनों चीजें प्ले की हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना घोड़ा पिटता देखा है तो उन्होंने कहा यार इसको तो हम तैयार कर रहे थे चीन की खातिर कि चीन से मुकाबला करेगा, तो ये तो यहीं पे फंस गया है।
तो मेरे ख्याल में उन्होंने हिंदुस्तान को उससे यानी रेस्क्यू किया है उस सूरत हाल से। अब मोदी साहब बेशक उसको जितना मर्जी ब्रेव फेस करें और ये सारा कुछ जो कहा है उन्होंने आज, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें से कोई नई चीज नहीं है, पहले भी कहते रहे हैं। लेकिन जो नई चीज है वो ये है कि एनवायरनमेंट बदल गई, खित्ता बदल गया है, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान भी बदल गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत हो गई, उसकी खामख्यालियां थी कि शायद भाई साइज में मुल्क छोटा है तो इतना पैसे नहीं होंगे या जो भी है मामला, तो वो खामख्यालियां भी दूर हुई। लेकिन चौधरी साहब क्विकली ये भी बताइएगा कि जो फेस सेविंग भारत को मिली है अमेरिका की तरफ से, बेसिकली वो घोड़ा जिसको कि मार भी पड़ी है, वो जख्मी है और अभी भी वो इल्यूजन का ही शिकार है, जिस टोन में आज उसने बात की है और ये कहा है कि हम दहशतगर्दी के अलावा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलावा हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ किसी इशू पे, तो यानी तो वो अपने अगले ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से भी बता रहा है कि हम तो आज़ाद कश्मीर पे नजरें रख के बैठे हुए हैं और जंगबंदी को भी वो आर्जी करार दे रहा है, तो उसको तो अभी भी इल्यूजन का शिकार है। इल्यूजन से ज्यादा एक सियासी, देखिए उनको ही इस वक्त सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपनी कौम को उन्होंने पिछले कई सालों से नफरत के और उस पे खड़ा किया था कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे और हम बहुत मजबूत हो गए हैं, दुनिया हमारी कदर करती है। अब जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी कौम को कुछ तो बताना है ना। तो ये फेस सेविंग है, अपनी पॉलिटिकल जो कॉस्ट उनको पड़ी है उसको कम करने के लिए, वरना तो ये पिच हो गए हैं अमेरिका के साथ। देखिए ना, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है, उसने कहा ना कि कश्मीर हल कराता हूँ, क्योंकि वो पीस मेकर बन के एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है, नोबेल प्राइज लेना चाहता है। अब हिंदुस्तान पिच हो गया, उसके साथ फंस गए, ट्रैप में आ गए, क्योंकि वो उनका पार्टनर है, बल्कि अमेरिका उनका मोहसिन है और उसने इतना उनके साथ कितनी की है ऐसा ना, तो इस वजह से अब इतना आसानी से ये टलेंगे नहीं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये खुद कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कायम है और चलेगा और साथ डीजीएमओ कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ड्रोन्स भी नहीं आएंगे और फायर भी नहीं होगा। ये ऊपर से अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के लोग भी जो तीरक लोग हैं वो समझ रहे हैं, परवीन सानी जैसे और दूसरे जैसे, उनको समझ आ रही है कि इन लोगों ने हमारे साथ यानी जो हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की क़यादत ने बहुत ही एक नुकसान कर दिया उनका। तो ये इतने आराम से इस तरह की तकरीरों से ये इनकी जान छूटेगी नहीं। अब जो नया नॉर्मल है वो इनकी तकरीरें नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से जो डिटेरेंस एस्टैब्लिश हुई है वो है नया नॉर्मल। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी कि हमने तो अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है उसको वाइंड अप कर दिया है, हमने उसके खात्मे का ऐलान कर दिया है और वी आर सेलिब्रेटिंग पीस, बट ऑन दी अदर हैंड वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये जंगबंदी जो है वो आर्जी तौर पे है, तो फिर व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्योंकि हम तो ख़त्म कर चुके हैं अपने तौर पर, वो बहरहाल अभी भी अड़े हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही बात। बात ये है कि जब एक हारा हुआ होता है, दुनिया में जगदसाई होती है, मुंह काला हो गया होता है और इनकी एक अकड़ टूट गई है, दुनिया को पता चल गया, मीडिया एक्सपोज हो गया झूठ बोलता हुआ। और अभी भी नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है वो अभी बैठे ये कह रहे हैं हमने पहले 3 दिन में पाकिस्तान का पूरे बेसिस तबाह कर दिए, पाकिस्तान को हमने नेस्तो नाबूद कर दिए। चुपट आदमी, क्या मुझे बताएं कि तुम किसको पाकिस्तान, तुम्हारी जितनी पब्लिक है वो तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हारे ऑपोजिशन लीडर लवाहिकीन जिनको तुमने मारा 27 लोगों सबको, उसके बाद तुमने 5 घंटे के अंदर फजर की नमाज से लेकर 12 बजे 6-7 घंटे में तुमने घुटने टेक दिए, तुमने अमेरिका की जाके गोद में रोने लग गए, खुदा के लिए बचाओ, लग रहे हमारे पर पाकिस्तान ने भी आफत नाजिल कर दी, इसलिए हमने तुम्हें मिसाइल मारे हैं और तुम्हारे ब्रह्मोस मिसाइल हमने तबाह कर दिए, तुम्हारा उंगली का जो बहुत सारा कश्मीर को एमुनिशन देते वो सारा तबाह कर दिया, S-400 तबाह कर दिए, सारे बेसिस उड़ा कर रख दिए, तुम्हारी जैमिंग सिस्टम कर दिए। शर्म आती है फॉर गॉड सेक, एंड देन यू हैव द गट्स कि जी वो सीजफायर पे क्यों किया, फिर क्यों किया सीजफायर, और सीजफायर किया तुम इसको छोड़ोगे। वी नो वी आर वेरी स्ट्रांग इफेक्ट, आप नेगोशिएशन करते हैं स्ट्रांग होके, नाउ वी आर स्ट्रांग, तुम जमीन समुद्र की गहराई में बैठे हुए हो, यू हैव नो राइट, हम अपनी चॉइस के फैसले करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब
जब अगला फरीक ये कह रहा है कि मैं तो बात ही सिर्फ इन इश्यूज पे करूंगा, दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर के ऊपर, और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से ठीक है सीज फायर पूरा है, वो कह रहा है आर्जी है, तो क्या फिर ट्रंप वो बेसिकली अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है हमें, और उसको अभी भी ये लग रहा है कि उसी की हेजेमनी होगी खित्ते में, तो एक और फोन कराना पड़ेगा क्या फिर मोदी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप से? देखिए, बात यह है कि इस वक्त उसके पास कोई रीजन नहीं है, इतनी बुरी तरह पूरी दुनिया में उसका मुंह काला हो गया, तो उसने फिर अरनाब उस्मानी को देखे क्या बकवास कर रहे बैठा हुआ कि पाकिस्तान में 400 ड्रोन आ रहे हैं कश्मीर के अंदर, लाइन वायलेशंस कर रहे हैं, मेकिंग एन एक्सक्यूज बट दे डोंट नो कि हमने सीज फायर किया, हमने अपने ट्रूप्स को स्टैंड डाउन नहीं किया। एवरीबॉडी इज रेड अलर्ट, वी नो यू आर कनिंग, तुम लोग मुल्क है तुम्हारा, बिल्कुल सही छोटे हो, इसलिए सब लोग तैयार बैठे हैं, वरना फेज 2 जो आएगा वो ऐसा होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगे, ये इससे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा इनको। ये डीजीएसपी ने पहले भी कहा था कि स्टार्ट आप करोगे, खत्म हम करेंगे, 5 घंटे में आपके सारा आपका बैंड बज गया, तो फायदा क्या आपको बात करने का, एंड कीप शट अप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ ही रहिए, चौधरी साहब आप भी मेरे साथ ही रहिएगा। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले आज ही की खबर है कि जयशंकर की कॉल हुई है अपनी ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से, और उनको जयशंकर साहब ने ये फरमाया है, बताया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी टेररिज्म के हवाले से, और किसी तौर पर भी हम रियासत को और लोगों को और टेररिज्म को अब अलग अलग नहीं समझेंगे, एक ही समझेंगे। जहां से हमें टेररिज्म का खतरा होगा, बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम उस जगह पे हमला करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे, और दुनिया को भी वो यही बता रहे हैं। क्या वो ये बात भी बेसिकली दुनिया को या हमें मैसेजिंग पहुंचा रहे हैं या बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी आप लोग हमसे कोई बईद ना रखना, और जहां पर भी भारत में किसी तौर पर कोई हमला हुआ या कुछ हुआ तो बगैर एविडेंस के, जिस तरह इस मरतबा पहलगाम के बाद उन्होंने कार्रवाई की है, उसी किस्म की कार्रवाई वो आगे आने वाले वक्तों में भी फिर करेंगे? फिर तो रेसिप्रोकल होगा ना जी। अगर हमारे यहाँ ये टेररिज्म कर रहे हैं तो चले हम इनकी तरह नीचे नहीं गिरते कि हम बगैर एविडेंस के ना करें, हम एविडेंस देकर इनके ऊपर फिर हम इनको होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। और इनके केस में तो स्टेट ऑपरेटिव्स हैं, ठीक है ना जी, इसलिए ग्लास के घर में बैठने वाले को दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये वो पुराना मंत्रा पढ़ रहे हैं, बदल गई है दुनिया और बदल गया खित्ता, ये पुराने मंत्रे नहीं चलेंगे। अब दूसरे लोग भी जानते हैं, जब हम उन्हें जाके बताएंगे कि जनाब ये है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त जितने सबूत हैं, जाफर एक्सप्रेस, DLA, बलूचिस्तान, गुलबशन, इस सब के डोजियर्स बनाए, कोर्ट में लेके जाएं, लेटर रोगेटरी बनाएं, लेटर रोगेटरी ले जाके इंटरपोल में दे, दुनिया में जमा कराएं कि जनाब ये है इनकी असल करतूत। ये जब तक आप नहीं करेंगे ना तैयारी, तो दुनिया को पता नहीं चल सकेगा इनकी हकीकत। तो इस वजह से, और वहां पे एक ग्राउंड है इस वक्त, वो सुनना चाहेंगे आपकी बात, तो आप जरूर तैयारी करके लेके जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, क्या हमसे कोई स्ट्रेटेजिक गलती तो नहीं हो गई कि हमने जब सीज फायर के लिए अग्री किया तो हमें ये शर्त रख लेनी चाहिए थी कि भारत कम से कम इंडस वाटर ट्रीटी को तो दोबारा से रिस्टोर करे, क्योंकि भारत फंसा हुआ था इंटरनेशनली, उसकी सुबकी हो रही थी, आर्टिकल्स छप रहे थे मोदी के खिलाफ, उनकी स्ट्रेटजी के खिलाफ, मिलिटरीली उनके जहाज राफेल जैसे फ्रेंच तैयारे गिर गए, और सारी कहानी पाकिस्तान के बड़े हद तक फेवर में जा रही थी। तो कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर ली उनको खुला फ्री हैंड दे के? 2 दिन के बाद तो जी सारा कुछ हाइंडसेट में बंदे को बड़ी समझ आ जाती, लेकिन जब जंग चल रही हो तो उस वक्त बंदा ये नहीं देखता, उस वक्त तो ये देखता है कि भाई अगर जंग बढ़ती चली गई तो हमारा भी नुकसान होगा, हिंदुस्तान का भी होगा। तो आप जब अपर हैंड मिल जाए तो आप जंग बंद कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं, अपर हैंड मिल गया ना आपको। अब आप जिस हौसले और जिस कॉन्फिडेंस से अभी आप जाके बात करेंगे, उसमें और पहली वाली बातचीत में बहुत फर्क है। और पानी का मामला हमारे लिए, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऐलान कर दिया हुआ है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर आपने उसको किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है पानी को रोकना। वैसे मैं आपको बताऊं, इतना आसान नहीं है पानी को रोकना जी। अभी किसी ने चाइना का कुछ डैम्स की बात की थी, तो उनको पता नहीं 40 साल का मंसूबा है, 2050 में मुकम्मल होगा, और जितना पानी इस वक्त है उसका आधे से भी कम है जिसको वो रोकना चाह रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये उसको मैनिपुलेट करें और पाकिस्तान की फसलों के लिए नुकसान पहुंचाएं, इसलिए हमें एक्शन तो करना है। हमें एक साथ इसी सांस में ये कहूंगा कि हमें चीन के साथ बड़ा करीबी और भी करीबी हो जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक जाना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करें
वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक जाएं जरूर जाएं, लेकिन वर्ल्ड बैंक वाले मुझे लगता नहीं है कि कोई खास ज्यादा करेंगे। ये इन काइंड ही जवाब होगा, इसलिए मैंने कहा कि चीन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जहाँ पे ये लोअर राइपेरियन है इंडियंस, और चीन का जो इस वक्त मूड है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का और पार्टनरशिप दिखाने का, इसलिए हमें बड़ा क्लोजली, वैसे भी उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया है पाकिस्तान का, और वो सही सच्चा दोस्त साबित हुआ है पाकिस्तान का, इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन अब बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अगले आने वाले दिन जो है इसमें बातचीत जरूरी है। लेकिन ये लोग भागेंगे क्योंकि इनका ख्याल है कि पानियों के मामले में इनका अपर हैंड है। इनका अपर हैंड नहीं है, हम इसको बड़े जोरदार तरीके से हमें ले जाना होगा ये एजेंडा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि चाइना ने हमारी बहुत एक जबरदस्त देरीना दोस्त होने की हैसियत से मदद की है और साबित किया है चीन ने भाई कि वो किस तरफ खड़ा है और क्या सही उसको लगता है। लेकिन पाकिस्तान के भरपूर जवाब और अमरीकी सालसी में होने वाली जंगबंदी ने अब साबित क्या किया है? मतलब वाज दिस पाकिस्तान एंड चाइना वर्सेज इंडिया एंड इट्स ऑज इन विच इंडिया लॉस्ट बैडली बिफोर आस्किंग यूएस फॉर हेल्प? नहीं, देखें शिफा, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इज नाउ very mature, responsible nuclear power with battle-hardened professional, and they have a technology also and it has cyber network also. We have proved, और हमने हर डिपार्टमेंट में इंडिया को जूते लगाए, ठीक है? इसलिए now the world knows, the complete Islamic countries know, they will all look towards Pakistan. And now Pakistan is a force to reckon with. They have the complete professional army, प्रोफेशनल चीफ ऑफ स्टाफ, और पाकिस्तान की कौम जो है वो साथ हुए खड़ी थी। एंड देन वी हैव देखें मिसाइल, इंडिया को पता ही नहीं अभी ये फतेहबान जो है ये 120 से 140 किलोमीटर है, ये सिर्फ हमने ये मारे हैं। हमारे पास 10 और किस्म के हैं, जो लास्ट है वो 4500 शाहीन 3 है, जो इनके एक इंच एरिया को हम कवर करते हैं, ये कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। देन वी हैव टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये एक स्टूपिड को, ये चाय वाले को पता ही नहीं है। टैक्टिकल मिसाइल होते हैं, अगर आर्मर्ड तौर पे आर्मर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कहीं से उस जगह को नुकसान करेगा। हमारे पास ये भी है, लेकिन सिंपल सी बात है, कश्मीर पे बात तो करनी नाउ इट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड, इंडिया ने खुद ही कर दी है। द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड कि नाउ कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, सो दे हैव टू रिजॉल्व इट। ये पूरे रीजन के लिए डेंजरस है, पूरी दुनिया के लिए डेंजरस, इसीलिए ट्रम्प ने कहा कि मैं कश्मीर पॉलिसी में तैयार हूं। सो वी होप I think we'll put much better the way Pakistan wants, because we are in a strong position. ठीक है। एजाज चौधरी साहब, आपसे भी मेरा मोर और लेस फाइनली यही सवाल है कि अब अगले 5 से 7 दिन आपको क्या होते हुए और किस तरफ जाते हुए, किस तरह से डिप्लोमेटिकली ये शेपअप होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं? सफारती मंजरनामा मुमकिन जो है उसके अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दिखाऊं कि भाई एक तो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान भारत एक मेज़ पर बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रही है, और दूसरा मंजरनामा ये है कि दोनों ममालिक बैठे नहीं हुए साथ, भारत ने इनकार कर दिया या जो भी वजूहात उसकी हुई, और ट्रंप कोशिश कर रहा है कि दोनों को टेबल पर बिठाए। साथ ही हमारे वजीर आजम साहब ने यह भी सजेशन दिया है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजाओं की जो है वो एक कमेटी बन जाए ताकि दीगर ब्रॉडर इशूज़ पर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से बात हो जाए। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है अगले 5 से 7 दिनों में? मुझे तो वही जो दूसरा सिनेरियो है, अभी नहीं होगा इतनी जल्दी। अच्छा, मैं आपको बता, हाँ, इतनी सुबकी हुई है इन्होंने अपना चेहरा बचाने के लिए। अभी ये थोड़ा लेतो लाल से काम करेंगे, अमेरिका के साथ बार बातचीत होगी, कई तरह के झूठ बोलेंगे, कई किस्म के नए आपके ऊपर इल्जामात लगाएंगे। तो अभी ये इसी तरह चलेगा, ये आ जाएंगे मेज पर अल्टीमेटली, क्योंकि इनके पास हल कोई नहीं है अब। और इसके लिए हल क्यों नहीं, क्योंकि इनको जिस तरह मैंने आपको शायद पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह इनको लोकसभा में तंग किया कि भाई तुमने तो जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारी के पाकिस्तान और चीन इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तुमने इकट्ठे कर दिए। तो इस वजह से इन पे प्रेशर है कि पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरीके से वो करें, लेकिन अभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये शुरू के जो आप कह रहे हैं ना 5-7 दिन, इंडिया और चाइना, इंडिया और अमेरिका के आपस में बहुत बार बातचीत होगी, ये नई नई तजावीज लाएंगे, घर के बात करेंगे, उस किस्म का चलता रहेगा। पाकिस्तान हैज टू बी केयरफुल। ठीक है, सो वी हैव टू वेट लॉन्गर। और क्विकली ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो एजाज चौधरी साहब ने बात की है उसके बाद, यानी कि फौरन से हम बैठेंगे भी नहीं, बातचीत भी नहीं होगी, तो क्या एलओसी पे ये हल्की फुल्की टक टुक चलती रहेगी उनकी तरफ से और जिसका जवाब हम देंगे? देखिए, कश्मीर में तो अक्सर चलती रहती है, स्मॉल होता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को, अमेरिका को इंडिया को कह देना चाहिए, अगर दोबारा इंडिया ने बलूचिस्तान में या के पी अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्द की,
We will respond the way India has responded. We haven't done anything और इसने ये कुछ किया है तो हमारे जाफर अख्तर इनकी देखभाल उनकी मीडिया बहुत कर रहा था, ये टेररिस्ट को सपोर्ट था, तो we have to play hell. I think ये जुबान समझता है डंडे की। हाँ। ये जो अखान भारत का ग्रुप का ना, इनको डंडा मारेंगे, राम राम करेंगे, जितना यूनिट होगी सर। अभी शर्मिंदगी में इनको मुंह दिखाने का बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो इनको अगले 10 सालों तक 15-20 सालों तक ये भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हावी नहीं हुआ जा सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना चौधरी साहब का भी यही मानना है कि अनकरीब ये टॉक्स होती नजर नहीं आ रही, अभी भारत ले तो लाल से काम लेगा। और ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की है कि अगर भारत जो है वो आगे कोई भी किसी किस्म की कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान को बड़ा क्लैरिटी के साथ दुनिया को ये बताना होगा कि फिर अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं भी अब दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ और जिसके पीछे हमें ये सबूत मिल गए जो भारत के साथ जोड़ते हुए उस सारे इशू को, तो फिर हम भी वही करेंगे जो भारत कर रहा है। तो आप देखते हैं नाजरीन कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। एक वक्फे की तरफ मुझे जाना है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये बताएंगे और दुनिया की आलमी मीडिया की कवरेज और भारतीय मीडिया की कवरेज इस वक्त मोदी सरकार के साथ क्या कर रही है, कितनी ठुकाई हो रही है उनकी और किस हद तक उनको जो है वो वहां पर सुक्की का सामना हो रहा है, मीडिया कैसे कवर कर रहा है इस सारे इशू को, ये आपको बताएंगे बड़ी डिटेल रिसर्च के साथ। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इस नरेंद्र मोदी की कि जो एक तरफ तो पाकिस्तान के हाथों जंगी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करने के बावजूद न सिर्फ उसको तस्लीम करने से इनकारी है बल्कि अब वो ये धमकी भी दे रहा है कि पाकिस्तान सीज फायर जो हुआ है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर जो हुआ है वो आर्जी है और मज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर ही करेगा। मगर दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को दिए गए भरपूर जवाब को भारत के लिए एक बहुत बड़ी अस्करी शिकस्त के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। और इस सेगमेंट में हम आपको 10 मई के बाद बनने वाली सूरत हाल के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी मीडिया की कवरेज दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आलमी बिरादरी अब किस तरह से भारत की मौजूदा पोजीशन पर सवाल उठा रही है और मोदी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी जजमेंट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस हवाले से सबसे पहले जो है आपको हम अल जज़ीरा की स्टोरी का ये कैप्शन मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूं कि जो कि बेसिकली बाकायदा तौर पे ये बात कर रहा है कि इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस, यानी कोशिश तो भारत ने अपनी ताकत दिखाने की मगर नतीजतन उसकी कमज़ोरी एक जो है ऐसे सामने आई कि जो बिल्कुल वाज़े है लोगों पर। अच्छा, अगली स्टोरी के हवाले से हम आपको बताते हैं हेडलाइन कि अगली स्टोरी हमारी जो है वो है कि एशिया टाइम्स में छपा है कि हम्बल्ड एंड ह्यूमिलिएटेड इंडिया शुड लुक बियॉन्ड मोदी, यानी कि मोदी से अब भारत को आगे देखना होगा। मोदी ने खासी जो है सिलसिला काम खराब कर दिया है और ये आवाज़ उठ रही है कि लीडरशिप जो है उनकी फ़िलॉसफी पर, उनकी लीडरशिप पर बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया सवाल उठा रहा है और इस किस्म की खबरें जो हैं वो छपती चली जा रही हैं। अच्छा, अगर मैं आपको अगली जो हेडलाइन है वो मैं दिखा सकूं तो मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान रिवील्स वीकनेसेस ऑफ इंडियाज एयर फोर्स, बाकायदा तौर पे उन्होंने हेडलाइन में ही पूरी स्टोरी छाप दी है कि J-10C जो है पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने जहाज़ों को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से पाकिस्तान के पायलट्स ने स्ट्रेटजाइज करके यके बाद दीगरे उनके जहाज़ों को गिराया, शिकस्त दी, 6-0 स्कोर जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में छप रहा है, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। लॉस ऑफ सेवरल फाइटर जेट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ये बाकायदा तौर पे हेडलाइन के नीचे जो मेन पैराग्राफ एक लिखा हुआ है वो आपको नजर आ रहा है। और इसमें भारत पर भी आवाज उठ रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई चीखें नहीं मार रहा, भारत भी मोदी को उतना ही क्रिटिसाइज कर रहा है और जो सेन वॉइसेज हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेज हैं भारत में, वो बाकायदा तौर पे अब मोदी की जजमेंट को, मोदी की जो सलाहियतें हैं लीडरशिप की, उनको बाकायदा तौर पे क्वेश्चन कर रही हैं। भले मोदी साहब पाकिस्तान को थ्रेट करते रहे कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, देख लेंगे। आज की तकरीर में मोदी सरकार ने यह बात की है कि भारत के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की होगी वो सिर्फ टेररिज्म पे होगी और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आज़ाद कश्मीर पे भी वो निगाहें रख के बैठे हुए हैं। वाजे तौर पर उन्होंने अपनी अगली जो सारी सालों की प्लानिंग है वो भी वाजे कर दी है, खोल कर दुनिया के सामने भी रख दी है। पाकिस्तान को अब उसमें कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं बची। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का नाम ले दिया है, यानी कि ये भी उनके एक टारगेट्स में कह लें या ऑब्जेक्टिव्स में मौजूद है। आप देखें, इंग्लिश सीज फायर हैज मोदीज ऑपरेशन सिंदूर बैकफायर्ड, ये बात हो रही है कि क्या जो ऑपरेशन आपने शुरू किया था पाकिस्तान के खिलाफ अपनी हेजेमनी खित्ते में कायम करने के लिए, अपनी ताकत को दुनिया के आगे प्रोजेक्ट करने के लिए कि भाई पाकिस्तान क्या छोटा सा मुल्क है, हमसे 3 गुना हम उसके साइज के हैं और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या उस ऑपरेशन ने भारत को जो है वो ऑपरेशन बैकफायर कर गया है? ये बाकायदा तौर पे
ये आपको हेडलाइन नजर आ रही है और साथ ही सवाल इसका जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रेज कर दूं कि स्टोरीज में ये भी बाकायदा तौर पे पूछा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी का वो बैकफायर कर गया और ऑपरेशन बनियानुल मुरसूस जो है वो हावी आ गया है भारत की, मतलब अरबों की एक जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो उसने अपने मिलिट्री के हवाले से, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से की हुई है। अच्छा, अगली स्टोरी आपको बताते हैं। द वायर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज मोदी कैन कम अप विद टू पहलगाम, प्लंजिंग इंडिया इनटू वॉर इज द वर्स्ट। ये भारतीय राइटर हैं प्रेम शंकर झा, बड़े मशहूर ये कॉलमिस्ट हैं और बड़ा जबरदस्त ओपिनियन पीसेस लिखते हैं। द वायर बेसिकली भारत ही का एक आप उसको समझें न्यूज़ एजेंसी समझें, और इसका मतलब उन लोगों के लिए जो नहीं समझ सके उनके लिए बता दूं कि क्या मोदी ने भारत को जंग में धकेल दिया है। तो इस किस्म के सवालात मोदी सरकार के ऊपर उठ रहे हैं, उनके अपने लोग उठा रहे हैं, बाहर के वेस्टर्न मीडिया को तो आप थोड़ी देर के लिए भुला दें। अनहर्ड की स्टोरी का मैं आपको टाइटल बताऊं, इंडिया कांट विन अ वॉर विद पाकिस्तान, मोदी हैज एवरीथिंग टू लूज। यानी कि मोदी के स्टेक्स इस वक्त बहुत ज्यादा हाई थे और मुझे इस हेडलाइन के ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इट सेज ऑल कि भाई मोदी किस माइंडसेट से आ रहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सारे हमले जो मोदी ने किए, और पाकिस्तान ने बड़ी हद तक रिस्ट्रेन शो किया, हमने बड़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने इंतजार किया कि मोदी को शायद अकल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टेलीग्राफ की स्टोरी का टाइटल आप जरा से देखें, इंडिया एडमिट्स इट सफर्ड लॉसेस ड्यूरिंग पाकिस्तान क्लैशेस। एक तरफ भारत और भारतीय मीडिया मुसलसल इस चीज को डिनाई करता है कि भाई पाकिस्तान ने हमारे जहाज नहीं गिराए या पाकिस्तान ने हमें किसी किस्म के कोई लॉसेस नहीं दिए, और दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी उनका हाल देखें कि वो उनका मीडिया भी चीखें मार रहा है कि हाय मर गए, लुट गए, पाकिस्तान ने हमले कर दिए। तो उनको समझ इस वक्त नहीं आ रही कि उन्होंने कौन सा नैरेटिव बेचना है। भाई क्या उन्होंने दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान ने उन्होंने बम मारा है, या उन्होंने दुनिया को यह बताना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं मारा, पाकिस्तान नहीं जीत सका हमसे, और क्या कौन सा नैरेटिव उन्होंने बेचना है, उनको अब इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही। जिसको कहते हैं ना हवास बख्ता होना, ये उर्दू का लफ्ज उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। और द नेशनल इंटरेस्ट की स्टोरी आप देखिए और ये जरूर पढ़िएगा, ये मैंने भी पढ़ी, बड़ी अच्छी लिखी हुई है। व्हाई हैज इंडियाज मिलिट्री परफॉर्म्ड सो पुअरली अगेंस्ट पाकिस्तान। ये टाइटल भी सब कुछ बता रहा है, मुझे आगे मतन जो था उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वो सवाल है जो पूरा भारत पूछ रहा है, उनके सीनियर एलिमेंट्स जो भारत में मौजूद हैं, पढ़े लिखे भारतीय जो कि ना ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ना ही एक्सट्रीमिज़म को बाय करते हैं, जिनको इख्तिलाफ है मोदी की रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ से, वो पूछ रहा है। उनकी पार्लियामेंट भी ये सवाल उठा रही है कि भाई मोदी का जो भारत है उसकी जो फौजें हैं पाकिस्तान के खिलाफ इतना बुरा परफॉर्म क्यों किया, ये सवाल है जो उठा रहे हैं, और इसी पर अब एनालिसिस भी वहाँ पर चल रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया की भी प्रेस कवरेज जो मोदी सरकार को मिल रही है, और उसके बावजूद मोदी सरकार में इतनी हिम्मत थी, वो इंग्लिश का वर्ड है ऑडेसिटी, वो ऑडेसिटी थी उसमें कि आज वो पाकिस्तान को तड़ी लगाए, और उसमें ये ऑडेसिटी थी कि वो पाकिस्तान को मुंह पे आके ये कहे कि भाई तुम लोग हार गए और हम जीत गए। मोदी सरकार को खुदारा और मेजर गौरव आर्या जो रिटायर्ड साहब हैं उनको ये आप हमारे प्रोग्राम का क्लिप भेजिएगा ताकि उनको पता चले कि दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है और सोच रही है और पूछ रही है। इसी के साथ नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को और हमारी अफवाज को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।